So, to talk about the expectations that the taxpayers have from the upcoming budget, we are joined by a distinguished set of panelists on the program. Let me introduce them to you. We have with us Mr. Kapil Mittal, tax expert. Welcome, gentlemen, on this special broadcast on Rajya Sabha TV. Okay. Coming to you, Mr. Kapil Mittal, the emerging view in the discussions ahead of the union budget has been in favor of reducing the tax burden in order to push more demand by ensuring more disposable income. Do you also hold the view? Is that the best way forward for the government? Yes, I think this is the only way through which government can increase the demand. They have to provide some kind of more earning in the hands of the individual. Like they can increase their ATC deduction, in which individual are claiming LIC benefits, their home loan principal benefits. So government can plan to increase those deductions so that an individual have a more income in their hands, so that consumption will increase, and accordingly manufacturing sector and everyone will get the benefit from that. For example, to increase that income of in individual hand, government can increase ATC. Government can also plan to give an additional benefit respect to medical treatment. Like currently it is 25,000, 40,000, that can be increased. For salary class, they can also increase that standard threshold limit, which is currently only 50,000. That can be increased up to 1 lakh also. Apart from that, government also need to focus that the rates of goods and services should not increase. They have to plan in such a way that an individual will get a more income in their hand. Corporates will get more opportunities to invest in India, so that whatever opportunities and new jobs can be created from that investment, that will help individual itself, whoever has lost their jobs in this noble pandemic, they can get a better jobs and get a better earning opportunities. Government can also think with respect to IT sector. There are many employees who are working from home, and they have to spend some more amount from their own pocket to arrange some infrastructure at their home. Government can also plan kind of a deduction, a specific deduction with respect to work from home. So these kind of steps will help an individual to increase their earning, and so that they can spend more, and manufacturing can be again boost up. Lastly, I would like to add, in the last quarter, if you see in October to December, everything is gaining, there is a V shape, which is showing that Indian economy is recovering very fast. But to boost that, it is absolutely required from the FM ma'am, that she will introduce such kind of a measure which will help economy and an individual, so that they can get more opportunities to earn, invest and save money, so that everything can be boost up. मिस्टर मित्तल, आपके पास आना चाहूंगी। जितनी मार ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को पैंडेमिक की पड़ी, शायद ही कोई और सेक्टर ऐसा होगा। अगर इन दो सेक्टर्स की बात करूं तो किस तरह की रियायतें मिल सकती हैं? देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें तो दे आर द वर्स्ट हिट सेक्टर ड्यूरिंग दैट पैंडेमिक। ट्रैवल एंड टूरिज्म की एक इम्पॉर्टेंट डिमांड हम देख सकते हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं मैट की रिलैक्सेशन आनी चाहिए, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि इस साल उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं बिजनेस में, और नेक्स्ट ईयर भी पिक करने में टाइम लग सकता है। तो वॉट एवर मैट इज़ देयर, अगर मैट की रिलैक्सेशन मिलेगी तो उसमें उनको बहुत बेनिफिट्स रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप देखेंगे, सुनील जी ने पहले भी मेंशन किया था, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 22%। इवन देन जो पार्टनरशिप फर्म्स या इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स रेट आ जाता है वो 30% का आ जाता है। तो देयर इज़ अ बिग मिसमैच ओवर देयर। उसकी एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में आप देखेंगे एक बड़ी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी लोअर रेट दे रहे हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो फर्म के मोड में या फिर इंडिविजुअल फर्म के मोड में काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक पैरिटी आनी जरूरी है, सो दैट के दे आर द रियल बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। कॉर्पोरेट्स आर देयर, बट जो फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं या इंडिविजुअल फर्म्स हैं, वो रियल बैकबोन है इंडस्ट्री का या फिर इकोनॉमी का। उनको एक पैरिटी पे लाना ज़रूरी है कि उनका टैक्स रेट कम किया जाए। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट इस टाइप से भी दिए सकते हैं मैडम एफएम, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेनिफिट दिए जा सकते हैं कि इफ़ अ पर्टिकुलर सेक्टर लाइक टूरिज्म और
ट्रैवल एंड टूरिज्म इज डूइंग सम काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, उन इन्वेस्टमेंट पे उनको बेनिफिट दिए जा सकते हैं, जिसमें कि कंसीडर किया जा सकता है कि अगर वो 25 करोड़ या फिर वॉट एवर लिमिट गवर्नमेंट विल डिसाइड, up to that limit they should be given a more tax benefits along with some tax exemptions कि अगर आप इंडस्ट्री में हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है, वहाँ पर जो कि वर्स्ट है उसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके प्रॉफिट्स 2 साल 3 साल तक एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। तो इस टाइप के बेनिफिट्स गवर्नमेंट थॉट प्रोसेस ले सकती है जिससे कि उस सेक्टर को स्पेसिफिक बूस्ट दिया जा सके, जिसमें कि आपका एविएशन सेक्टर भी है जिसको बहुत ज़्यादा हिट है अभी, वहाँ पर टैक्सेस के ऊपर वर्क किया जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर वर्क किया जा सकता है जहाँ पे कम किए जा सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो अभी एक नया प्रोविज़न लास्ट बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो भी फॉरेन पेमेंट्स होंगी या फॉरेन ट्रैवल होगा उसके ऊपर एक TCS लगाया था गवर्नमेंट ने, तो उसको भी डेफर किया जा सकता है सो डैट कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। अभी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, लोग डर रहे हैं कोरोना की वजह से। दैट्स गुड के इंडिया में कोरोना की वैक्सीन आ गई है और इंडिया तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और बहुत अपर लेवल पे इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल पीपल आर थिंकिंग के वेदर दे विल प्लान एनी हॉलीडेज और नॉट, दे विल ट्रैवल अप टू दैट लेवल और नॉट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो लास्ट बजट में इन्होंने TCS लगाया था उसको भी अभी ये रिलैक्सेशन कर सकते हैं फॉर 1 or 2 ईयर एटलीस्ट। तो इस टाइप की चीज़ें ज़रूरी है जो मुझे लगता है आनी ज़रूर चाहिए स्पेसिफिकली ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए। जी बिल्कुल। कपिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बात कही सनसेट क्लॉज जो SEZ है उसके एक्सटेंशन की बात है, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये आत्मनिर्भर भारत के लिए? कि सनसेट क्लॉज को एक्सटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैंडेमिक की वजह से हम सब देख रहे हैं कि प्रॉफिट श्रिंक हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लोगों के हाथ में पैसा देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सनसेट क्लॉज को तो आगे करना बहुत ज़रूरी है सो दैट के IT सेक्टर जैसी कंपनीज उससे बेनिफिट ले सके। इसके अलावा भी बहुत जगह क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अभी पैंडेमिक की वजह से देयर आर मैनी एम्प्लॉयज़, मैनी कंपनीज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टेरटेन कि अगर एक कंपनी SEZ में रजिस्टर्ड है बट उसके सभी एम्प्लॉयज़ अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो वेदर दैट विल बी क्वालिफाई एज अ SEZ सेक्टर कंपनी और नॉट। तो वहाँ पे क्लैरिटी बहुत रिक्वायर्ड है क्योंकि पैंडेमिक ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। अर्लियर द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, वे ऑफ लिविंग अ लाइफ वाज डिफरेंट, नाउ इट इज़ टोटली चेंज। तो उसको देखते हुए हमें समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी क्लैरिफिकेशंस बहुत सारे लाने पड़ेंगे टू अलाइन एवरीथिंग के अगर वो ये बेनिफिट देना चाहते हैं SEZ के और उनके एम्प्लॉयज़, एक कंपनी जो SEZ में रजिस्टर्ड है बट उनके सभी एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट्स मिल पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट सनसेट क्लॉज तो इंक्रीज़ करना ज़रूरी है ही है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि अभी इन्होंने जितने भी इंसेंटिव्स वगैरह मिलते थे उन इंसेंटिव स्कीम्स को बंद करके नई इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने बोला है कि SEZ को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अभी उसका ड्राफ्ट आना बाकी है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद बजट में वो उसे अनाउंस करेंगे। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि SEZ को वो बेनिफिट दिए जाएँ सो दैट कि जो SEZ का पर्पज़ है वो डिफीट ना हो जाए और वो सारी चीज़ें बेनिफिट SEZ को मिल पाए, इंडस्ट्री वगैरह गेन कर पाए उससे। And Mr. Mittal, close the show for us. कि काफ़ी हद तक हमने जैसे डिस्कशन किया, अभी रिक्वायरमेंट है कि इंडिविजुअल के हाथ में कैश जनरेट करने की सो दैट कि उनके पास ज़्यादा इनकम आए। गवर्नमेंट को, FM मिनिस्टर को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाएँ जिससे इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिले प्लस लोगों के हाथ में पैसा आए। वहीं साथ साथ उन्हें ये भी कंट्रोल करना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए। अभी उनको इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इन्फ्लेशन पे फोकस करने से क्या होगा, वो टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे। अभी कलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों के हाथ में अपॉर्चुनिटी जनरेट करें, इनकम जनरेट करें, जिससे कि लोग ज़्यादा खर्च कर पाएँ और अकॉर्डिंगली जो अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी वो एकदम से चल पाए। तो मेरे विचार में उन्हें अभी फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लोगों के हाथ में जनरेट की जाए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और अच्छी जॉब्स क्रिएट की जाए। So that's it from us in this special broadcast. It's a wrap up from me and Kriti. See you again next time.